Hi, this video is the first video of a series of videos that I'm planning to create on the parallels between test preparation and life. While I'm calling it test preparation and life, the examples will mainly be around GMAT preparation because that's what my focus so far has been. So let's start with the first example or with the first parallel. तो कई लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए कि GMAT is a stupid test. And then I think काफी लोगों ने सुना होगा that we say life sucks or it's a terrible place to be in. Life is full of misery and all that. So what is the parallel here? The parallel here is let's try to understand when somebody is calling GMAT sucks. GMAT is a stupid test. क्यों कह रहा है वो? Is it coming out of a rational assessment or is it coming out of frustration? I think it is coming out of frustration. जनरली मैंने उन्हीं लोगों को देखा है जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं एस करने की जीमैट को बट हो नहीं रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट क्या कमी रह रही है सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ सो देन दे रीच अ कंक्लूजन ये स्टूपिड टेस्ट है यार मतलब इसका सिर पैर नहीं है मतलब इट्स अ नॉनसेंस टेस्ट जिसको किसी सेंसिबल तरीके से एस नहीं करा जा सकता मतलब इट कुड बी दे आर प्योरली वेंटिंग इट आउट they have to vent it out on somebody or something. So they're just venting it out. But I think at least in some cases I've seen that people start to actually believe कि हाँ यार ये अजीब सा weird test है ये. Now when you call it stupid or weird, इसका क्या मतलब है? मतलब you are saying कि ये एक properly designed, एक rational test नहीं है. It is not really testing you on something sensible. Uh, So essentially, you are calling the quality of the test in question. वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं to figure out the test, so that you can ace the test. तुमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, काफ़ी कोर्सेज कर लिए हैं, पर फिर कुछ ना कुछ अटक जाता है, फिर क्वेश्चन गलत होते रहते हैं. Then you reach a realization कि यार ये बकवास है. It's a stupid test. तो अगर तो again purely venting है, then it's fine. You can vent it out. Then after a couple of days, you can come back and do your preparation, and hopefully over a period of time, you'll be able to ace it. But if you start believing in this idea कि ये actually stupid है, तो मतलब ये कोई systematic, rational, sensible तरीका नहीं है इसको ace करने का. Then my question is, what happens to your chances of to actually ace the test? I think the chances go down considerably अगर तुम सच्ची में believe करने लग गए. Because basically the way to ace the test is by a systematic preparation process, which is rational. But in the first place, हमने टेस्ट को irrational क्यों कहा? टेस्ट को ही stupid क्यों कहा? क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी पर टेस्ट नहीं हो रहा था. तो दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं stupid या टेस्ट stupid है. अगर मैं अपने आप को stupid बोलता हूँ, that's more painful. वो भी किसी लेवल पे शायद मैं बोल ही रहा हूँगा, but that naturally is more painful to accept. अगर मैं टेस्ट को stupid बोल देता हूँ, at least the blame is on somebody else.
That's less painful. So essentially, I'm trying to manage my pain. I'm trying to essentially go with the option that is of net benefit to me. क्योंकि अपने आप को stupid बोलना is more painful. So I would go with the other option, which is to call the test stupid. बट क्या इन दो ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन एग्जिस्ट करता था? आई थिंक करता था कि could be कि neither I'm stupid nor the test is stupid. Just that not been able to figure it out yet. तो अभी तक जिन तरीकों से मैंने करा है वो तरीके काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो तरीकों से मैंने करा है उन तरीकों को मैंने बहुत ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करा है. देन इट्स अबाउट द वे ऑफ implementing those ways. So either way, I have to make some changes in my preparation. So then I'm not getting into calling anybody stupid. I'm just saying कि ठीक है, the task has not been accomplished yet. तो अब टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेचुरली जो अभी तक करता हूँ उससे तो नहीं हो रही है. आई कांट इवन सी द प्रोग्रेस. आई रेदर फील स्टक. So it means I need to do something new. Now, can I figure that out on my own? If not, I need to get some help, right? But if we are getting frustrated, then out of frustration, I think we'll have a tendency to not go with this option. Will be to find somebody to blame, either ourselves कि यार मैं इतना बेवकूफ क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे, which is very painful. The self criticism is always very painful. क्योंकि कोई और क्रिटिसाइज करता है तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. हम ही अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, देयर इज नो डिफेंस. So it is a very painful experience. So naturally, we don't do that and we say we put the blame on somebody else here on the test. But तीसरा ऑप्शन एग्जिस्ट करता था, और तीसरे ऑप्शन में ही बेसिकली we have the highest chance to succeed. Because by calling the test stupid, as I said, essentially we are saying, okay, there is actually no systematic, rational way to ace it. And by constantly reinforcing that within, we are actually moving away from something that will help us succeed. तो ये सेम चीज लाइफ में भी होती है. लाइफ में नेचुरली अगर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा है तो दैट पर्सन विल नॉट बी ब्लेमिंग एनीवन, ईदर लाइफ और हिज ओन सेल्फ. बट अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, देन द पॉइंट इज टू फाइंड समबडी टू ब्लेम. तो यहाँ तो अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं या लाइफ को ही ब्लेम कर दो. लाइफ में ब्लेम करने में नहीं, मतलब यू गो आउटसाइड टू ब्लेम. सो दिस पर्सन, दैट पर्सन, और अगर बहुत सारे लोगों को ब्लेम कर ही चुके हैं तो यू कैन ब्लेम लाइफ इटसेल्फ कि लाइफ इटसेल्फ इज मेसी. उससे क्या वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन. तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज नॉट गुड. उसलिए हम ब्लेम करने निकले हैं क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा होता तो बढ़िया है, फिर तो क्या बढ़िया, राइट? देन वी डोंट नीड टू ब्लेम एनीवन. The experience is not great. Rather, the experience is bad. So then that's why we are calling life messy or life is bad and all that. But by calling life bad or life itself is a source of misery, we are also closing the doors to look for solutions. Right? Why would we even look for solution when we start to accept कि life है ही ऐसी? तो अब ये सोच के देखो, मतलब हमने लाइफ को बोलना क्यों शुरू किया था कि लाइफ इज अ सोर्स ऑफ मिजरी एंड लाइफ इज मेसी? क्योंकि वी वर फीलिंग मिजरेबल एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार व्हाई एम आई सो मिजरेबल, व्हाई इज माय एक्सपीरियंस सो बैड. तो या तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ, या तो मैं ही इतना बुरा हूँ, या फिर तो लाइफ ही ऐसी है. इट्स जस्ट
stream of constant misery. तो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, मैं उसकी कॉज़ैलिटी ढूँढने गया, राइट? कि मैं खुद ही कॉज़ हूँ अपने एक्सपीरियंस का या फिर कुछ और कॉज़ है। तो कॉज़ क्यों ढूँढने गया? अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आई कुड हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट एक्सपीरियंस विदाउट गेटिंग इनटू कॉज़ैलिटी। तो अभी शायद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कुछ टाइम बाद अच्छा हो जाता। मतलब देयर कुड बी साइकल्स ऑफ लाइफ। बट मैं कॉज़ैलिटी में जाने का क्या कारण होगा? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन कि क्या जड़ है? क्यों एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है? ये समझना क्यों है मुझे? ताकि मैं अच्छा कर सकूँ एक्सपीरियंस को। ओरिजिनल इंटेंट तो ये थी कि एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकूँ, राइट? बट जो सॉल्यूशन मैंने पकड़ा, क्योंकि मुझे लगा 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अपने आप को ब्लेम करूँ या लाइफ़ को ब्लेम करूँ, तो मैंने लाइफ़ को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि लाइफ़ इज़ जस्ट मेसी, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ कांस्टेंट मिज़री एंड ऑल दैट। अब उससे क्या मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूँ? नहीं बढ़ रहा हूँ। रेदर अगर ये चीज़ मैं बार-बार री-एम्फसाइज़ करता रहा, तो आई विल स्टॉप लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे लगेगा दिस इज़ हाउ लाइफ़ इज़, है ही मिज़री, तो सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट भी कैसे कर सकता है? तो फिर तो आई विल जस्ट थिंक कि मुझे मिज़री मैनेज कैसे करनी है, पिल्स लेनी है, डिस्ट्रैक्ट करना है अपने आप को या जो भी करना है। तो फिर तो मैं सोचूँगा कुछ सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो जीमैट को अगर मैंने समझ ही लिया कि इट्स अ स्टूपिड टेस्ट, तो फिर तो कोई तरीका एग्ज़िस्ट नहीं करता। बट जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है सो आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा सो नहीं आ रहा है। कुछ तरीका नहीं है, सेंसिबल तरीका नहीं है जिससे हम जीमैट को एस कर सकते हैं। है ही स्टूपिड सा टेस्ट। तो रास्ते ही बंद कर दिए अब देखने की कि हाँ, देयर इज़ अ वे टू एस द टेस्ट, देयर इज़ अ वे टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, टू हैव अ हैप्पी लाइफ। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ही एक्चुअली इट्स क्लोजिंग द डोर्स टू द एक्चुअल सॉल्यूशन। पर हम उस सॉल्यूशन पे क्यों पहुंचे हैं कि वी आर ब्लेमिंग लाइफ इटसेल्फ, वी आर कॉलिंग लाइफ इटसेल्फ बैड? क्योंकि हमारे दिमाग में दो ही सॉल्यूशन थे, दो ही रास्ते थे, या तो खुद को ब्लेम करें या लाइफ को ब्लेम करें। ये थर्ड ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है समहाउ कि लेट्स नॉट ब्लेम एनीवन, let's just see the problem as it is. Right now, my experience of life is not great. And let's just try to figure out ki what can I do in a constructive way to make it better. That's it. So then you need to just go and introspect and go within कि क्या-क्या चीज़ें मैंने करी हैं और क्या-क्या काम नहीं कर रही हैं और क्या-क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब ऑल्टरनेटिव्स एक्चुअली ये मुश्किल आ जाती है क्योंकि हमें बहुत जगह ऑल्टरनेटिव्स नज़र ही नहीं आ रहे होते हैं। अगर इस तरह से ना जिऊँ तो मैं किस तरह से जिऊँ? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि सॉल्यूशन ही ढूँढने निकले थे कि मैं लाइफ में आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सफरिंग। तो उसका सॉल्यूशन ढूँढने निकले, कॉज़ैलिटी पे गए तो लगा या तो मैं ही कारण हूँ या फिर लाइफ कारण है, तो चलो लाइफ को कारण बोल देते हैं। और तीसरा समझ ही नहीं आ रहा था अल्टरनेटिव कि नहीं इसको किसी को ब्लेम करने से क्या हुआ है? ब्लेम किसी को भी नहीं करते। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। उस मोड में हम जा नहीं पाते हैं। पता नहीं ट्रेनिंग ही ऐसी हो रखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और फिर अगर ढूँढने भी जाएँगे कि अपने अंदर में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि कौन-कौन से मेरे डिसीज़न्स हैं, किस तरह से मैं जी रहा हूँ, व्हिच इज़ नॉट वर्किंग आउट इन माय फेवर। तो समझ भी नहीं आता कि इस तरीके से ना जिऊँ तो किस तरीके से जिऊँ। मुझे इसमें एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है। आई हैड अ स्टूडेंट, प्राइवेट ट्यूटरिंग जीमैट स्टूडेंट, तो मार्केटिंग में थी वैसे, अपनी जो भी जॉब कर रही थी। तो शी डिड हर प्रिपरेशन विथ मी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसको स्कोर भी आ गया। देन व्हेन शी गॉट द स्कोर शी वाज लाइक सर, हमें 10x करना है आपका रेवेन्यू।
मैं कहा 10x करना है, क्यों करना है? शी वाज लाइक क्यों करना है? आई थॉट कि आप पूछोगे कैसे करना है? तो मैंने कहा कैसे तो बात की बात है, बट करना क्यों है? तो करना क्यों है का क्या मतलब होता है? ग्रोथ तो सबको चाहिए होती है ना, तो जो भी आपका रेवेन्यू हम उसको ग्रो करते हैं। मैं कहा बट क्यों करनी है ग्रोथ? ग्रोथ ग्रोथ क्यों करनी है, ये क्या क्वेश्चन है? मतलब सबको ग्रोथ चाहिए होती है। मैं कहा वो ठीक है, ग्रोथ चाहिए, मुझे भी चाहिए, बट रेवेन्यू में ही ग्रोथ क्यों चाहिए? लेट्स से ग्रोथ मुझे, जो मेरा सेटिस्फैक्शन इन लाइफ है, जो पीस है, जो फुलफिलमेंट है, उन चीज़ों में भी चाहिए हो सकती हैं। आई कैन मेक देम द प्रायोरिटी। साथ साथ रेवेन्यू बढ़ जाए अच्छी बात है, बट रेवेन्यू को क्यों ऑप्टिमाइज करूंगा मैं? शी डिडंट हैव एन आंसर, बट बिफोर द कॉन्वर्सेशन आई थिंक उसके दिमाग में था कि हाँ, मतलब और क्या करेंगे? मतलब ये तो बेसिक बात है कि अब रेवेन्यू जो भी है तुम्हारा, उससे ग्रो करना है। क्यों करना है? मतलब इन इट्स, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं दूसरे ना, एंड देयर आर अदर वेज टू लिव। एक्चुअली बहुत सारे टाइम मतलब आसपास ऐसा लगता है ऑप्शन ही नहीं है। मतलब फोर्स की बात है, करियर और प्रोफेशन को ही ऑप्टिमाइज करना है, वेल्थ को ही ऑप्टिमाइज करना है, स्टेटस को ही ऑप्टिमाइज करना है, अपना वेल बीइंग, योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। तो उसको तो हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं इसको छोड़ो ना यार। फीलिंग्स के पीछे थोड़ा ना लाइफ जी जाती है। मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट की फ्रेंड आई थी। शी जस्ट स्टार्टेड एज अ लॉयर फ्यू मंथ्स बैक। तो शी वाज वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स। तो वो कह रही थी वहाँ पे 16 से 18 घंटे रोज काम करना होता है। कह रही थी सर आई एंजॉय लॉ। तो मुझे अगर कोई 9-10 घंटे कराए तो मैं करूँगी, मज़े से करूँगी, एंड आई विल एंजॉय डूइंग इट। बट 16-18 घंटे इज टू मच फॉर मी। मेरे को लाइफ में कुछ और भी करना है। आई कॉन्ट जस्ट डू 16-18 आवर्स अ डे जस्ट लॉ। मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ या अपने फैमिली में बताती हूँ कि आई कॉन्ट डू दिस, आई लिव दिस जॉब। तो वो सारे कहते हैं कि यार डोंट बी वीक, बी स्ट्रांग, यू कैन डू इट। तो कह रही थी यार मतलब सर अब मुझे, मतलब आई कांट हैंडल इट, मतलब 16-18 आवर्स, और मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं सोच रही हूँ छोड़ने की, बट आई डोंट वांट टू बी वीक एट द सेम टाइम, आई वांट टू बी स्ट्रांग। तो मैंने कहा वो तो फिर डिपेंड हो गया ना, हाउ यू डिफाइन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। वो एक तरह से डिफाइन कर रहे हैं, बट आई कैन ऑल्सो सी कि there could be other definitions. So for example, what would you call someone, let's say if there is person who is choosing to go against the society, and that person is just listening to his or her heart, listening to what she needs in the moment, and going against the society. Would you call that person weak or strong? So in that perspective, she would be strong to take matters in her own hand, leave the job. I'm not saying which one is the right decision, but I'm saying there are alternatives available. It is just that कि बहुत बारी जो आसपास हमारे चीज़ें हो रही हैं उससे हमें ऑल्टरनेटिव्स ही नज़र नहीं आ रहे थे कि इस तरीके से ना जिए तो किस तरीके से जिए। तो खैर कमिंग बैक टू द पैरल, तो क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है ऑल्सो शेयर की पैरल्स पे मैं सीरीज बना ही क्यों रहा हूँ। एक तो क्योंकि मैं हर चीज़ को लाइफ से रिलेट करता रहता हूँ। मैं जब एमबीए भी कर रहा था, वहाँ पे मैं जो लीडरशिप पढ़ाते थे, या आई एम नॉट श्योर कि बाकी मार्केटिंग पढ़ाते थे या और भी अब मुझे लग रहा है कि या फाइनेंस में भी मैं क्या उसको रिलेट करता रहता था। आई थिंक मैं रिलेट करता। फाइनेंस का एग्जांपल कभी मैं दूंगा फ्यूचर में कि मैंने उसको लाइफ से कैसे रिलेट करा था। बट हाँ, मैं ज़्यादातर चीज़ों को लाइफ से रिलेट ज़्यादातर बोल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें या लेट्स कीप इट ज़्यादातर ज़्यादातर चीज़ों को मैं लाइफ से ही रिलेट करता रहता हूँ। तो वैसे ही
GMAT ट्यूटरिंग में रहा हूँ, तो जो जो स्ट्रगल्स, जो जो डिफरेंट सिचुएशंस रहती हैं, आई कीप रिलेटिंग देम टू हाउ वी लुक एट लाइफ इन जनरल। तो मुझे जो पैरेलल्स हैं काफ़ी इंसाइटफुल लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। आई थॉट आई वुड शेयर विद अदर्स, perhaps some of these may be useful to some people. Coming back to the parallel that we started with, um, it's a stupid test. No, it's not a stupid test. Nor are you stupid. Just that वो टेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ और करने की जरूरत है, फिगर आउट करो, हो जाएगा। Similarly, life is bad, yeah, life is messy and all that. इस सबसे कुछ हेल्प नहीं होगा, सोच के देखो। लाइफ ही तो है, राइट? उसी को हमने बुरा बोल दिया तो फिर तो वी आर क्लोजिंग द डोर्स टू हैविंग ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जस्ट दैट कि अभी अमेजिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिगर आउट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क रहेगा, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, राइट? सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के लिए तो कर रहे हैं। So yeah, to look at alternate ways of looking at things, alternate ways of living, perhaps that will help us make better decisions and hopefully have a pleasant and over a period of time great experience of life. Thank you.